Hello students, today in this video we will discuss some important key points related to the conductors, because the next chapter is based on the conductors as well as insulators. Okay, so first of all, here we discuss important key points of conductors which help us to solve the problems of next chapters, in which we will study about the concept of capacitor, which we used to store charge or electrostatic energy for a small time. Okay, so come back. Key points regarding charged conductor. Charged conductor, excuse me, charged conductor. Okay, suppose we have a charged conductor. So first point is the electric field inside a conductor is always 0. Okay, which can be proved easily by the help of Gauss's theorem. To prove this, we use Gauss's theorem. For example, this is any conductor of any shape, that is irregular conductor, and it is charged. And you know very well about the properties of a conductor. Net charge of a conductor is in the form of series charges which exist or lies on the surface of that conductor. So the net charge will be distributed on the surface of this conductor. So the net charge inside the conductor Q in is 0. To find out the electric field inside the conductor, we draw a Gaussian surface like that. Inside this, just inside the conductor. If you want to air, then the Gaussian surface will be at that point, passing through at that point. And if you want to find out electric field from at that point, then the Gaussian surface will pass through this point. Okay, it depends on you. Okay, so we take here a Gaussian surface which passes just near about the
surface of the conductor. Then for this Gaussian surface S, we can apply Gauss's theorem. According to Gauss's theorem, net electric flux passing through the Gaussian surface is equal to, dA यूज कर लीजिए, dA equals to q net, which is q in by epsilon naught, and which is equal to closed surface integral E in, dot dA equals to q in is 0. That is net electric flux passing through the conductor is always 0, because if any line, all the lines are goes out the surface. चलिए, कोई भी लाइन आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इसके अंदर से पास नहीं होगी, कहां से चलेगी? सरफेस से, क्योंकि अंदर चार्ज नहीं है। देखिए इसका जो प्रॉपर्टी है वो डाइवर्ज होने की है बाहर की ओर, नॉट कन्वर्ज। तो चलिए अब यहां पर जब आप डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे और सरफेस एस, तो ये आपका होगा ई इन डी ए कोस थीटा। आपको क्लियर होगा कि यदि मान लीजिए आप यहां पर कोई पॉइंट कंसीडर भी करते हैं तो चार्ज नेट जीरो है, तो नेट चार्ज जब जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि डीए तो नॉट जीरो होगा और थीटा कुछ भी हो सकता है, जीरो तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि जो ये पॉसिबल तभी होगा कि जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? जीरो हो। क्या हो? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? जीरो हो। तो आप यूनिफॉर्म सरफेस ले सकते हैं और यूनिफॉर्म सरफेस की हेल्प से इसे क्या कर सकते हैं? ड्राइव कर सकते हैं रिलेशन को। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म सरफेस नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिफिकल्टी अराइज होगी, बट ये तभी पॉसिबल होगा जीरो जब आपका ई इन क्या होगा? एट एनी पॉइंट जीरो होगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास नहीं होती है। क्लियर है ना? चलिए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ऑलवेज कितना होगा? जीरो होगा। आप इसे अनदर वे में भी यूज कर सकते हैं, अल्टरनेट में, कि चूंकि आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कंडक्टर को पास नहीं करती है, तो इसलिए आप यहां से जब इसमें पुट करेंगे क्यू इन इज जीरो होगा, दैट मींस नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर विल ऑलवेज जीरो। ये भी यूज कर सकते हैं। जनरली ये लाप्लास इक्वेशन से ड्राइव किया जाता है, जिसे आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे, तो यहाँ पर हम इसे डिस्कस नहीं करें, इनडायरेक्टली मैंने आपको बताया, इसलिए इंप्लाइज दैट का सिंबल लगाया है। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या डिस्कस करेंगे? सेकंड प्रॉपर्टी क्या डिस्कस करेंगे? देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड ए कंडक्टर। There is no electric field line electric field lines there is no electric field line which passes through the charge conductor. There is no electric field line inside the charged conductor. Okay. Second property is any excess amount of charge given to a conductor
given to a conductor always lies on its surface, lies on its surface, okay. And next property is the surface charge density, the surface charge density at any point of any charged conductor is always inversely proportional to the radius of curvature at that point. Means suppose this is any surface and here is any point O, and this is the radius of curvature of here of this point. देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स क्या होता है कि सपोज कर लीजिए कि आपके पास ये कोई सर्किल है, तो इस सर्कल की कोई ना कोई क्या होगी, रेडियस होगी। यदि हम इस कर्व का कोई पार्ट कंसीडर करें तो उसकी भी कोई ना कोई रेडियस होगी, उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्व, दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए यहाँ पर सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, दैट इज 1/r। दैट मीन्स इफ r is larger then sigma will be smaller, और r larger तब होगा जब इसका कर्व जो कर्ड है, जो मुड़ा हुआ पार्ट है वो क्या होगा, कम होगा। तो जितना कम मुड़ा हुआ होगा, कर्व होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, r। तो ये एक इस तरीके से कह सकते हैं कि 2 टाइप्स के ऐसे हैं, एक ये है तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर लार्ज होगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर लार्ज इसकी है तो इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी, इस पर लार्ज होगी। तो इसके इस पॉइंट पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उस पॉइंट पर लार्जर होगा जिस पॉइंट की रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉलर होगी, स्मॉलर होगी, ओके। तो जिस और स्मॉलर किसकी होगी, जिसका कर्वेचर क्या होगा, जिसका कर्वेचर क्या होगा, जिसका कर्वेचर क्या होगा, लार्ज होगा। जिसका कर्वेचर जितना लार्ज है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर उतनी क्या होगी, स्मॉलर। इस कर्वेचर मतलब जो मुड़ा आया होता है इसे कर्वेचर बोलते हैं। तो इसका कर्वेचर लार्ज है, इसका कर्वेचर स्मॉल है, इसलिए इसकी रेडियस लार्ज है और इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल है। तो ये आपके 4 पॉइंट से। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इसका एक स्पेशल केस कंसीडर कर लेते हैं। स्पेशल केस इसका एग्जाम्पल के लिए, तो स्पेशल केस में हम कंसीडर करते हैं क्या, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर। तो जब स्फेरिकल कंडक्टर की आप बात करेंगे तो स्फेरिकल कंडक्टर की इस तरीके से हम फिगर ड्रॉ कर सकते हैं और ये इसका क्या होगा, सेंटर। तो आप देखिए इसका कोई भी कर्व पार्ट आप उठा लीजिए, सभी जगह कर्वेचर क्या है, सेम है
और इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसकी हर जगह क्या है, सेम। तो यहाँ पर जो आपका आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये कांस्टेंट होने के कारण इंप्लाइज दैट सिग्मा विल आल्सो बी कांस्टेंट। और जब सिग्मा कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है स्फेरिकल कंडक्टर की सरफेस पर, वो आपका क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। इसलिए हम लिखते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। क्लियर हुआ ना। चलिए अब आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड just outside ये फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई आपकी। जस्ट आउटसाइड ए कंडक्टर ऑफ एनी शेप, कंडक्टर ऑफ एनी शेप is always equal to sigma upon epsilon naught, where sigma is the surface charge density, implies that E just outside is equal to sigma upon epsilon naught. That means electric field due to a conductor depends only on the surface charge density, does not depend on the figure shape of the conductor. Okay, shape of the conductor. Now next property is, and also we can relate this point, implies that E is directly proportional to sigma and sigma is directly proportional to R, 1 upon R. So we can write E is directly proportional to 1 upon like that, 1 upon R. That means we can say that just outside or on the surface. Okay, it's not a case of point charge. Okay, चलिए now here see, just outside की बात कर रहे हैं. Okay, on the surface now. Okay, where the radius of curvature is smaller, then E will be larger. Okay, if R is smaller, then E will be larger. अब आप देखिए, जितना आपका कंडक्टर शार्पर होगा, शार्प एज वाला होगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लार्ज होगा. तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस कंसेप्ट का यूज करते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा, जनरल लाइटनिंग होती है आसमान में और वो बिजली जमीन पर गिरती भी है, तो उससे बचाव रखने के लिए, सेफ रहने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपनी बिल्डिंग्स पर जो ऐसे चीज़ें हैं उन पर हम क्या करते हैं कि एक आप क्या लगा देते हैं, कंडक्टिंग वायर यूज करते हैं. क्या करते हैं, एक कंडक्टिंग वायर की सपोर्ट लेते हैं और उस पर एक शार्प एजिस का सिंबल बना देते हैं, उसका ऊपर शार्प एजिस का. ओके, जिससे क्या होगा कि इसका आर बहुत ज्यादा स्मॉलर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही क्या होगा,
लार्ज होगा और सिग्मा भी उतना ही ज्यादा क्या होगा, लार्ज होगा। तो क्या होता है कि उस कंडीशन में वो सारा का सारा चार्ज इसमें एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी अर्थिंग कर देते हैं, तो वो सारा चार्ज अर्थ में चला जाता है, जिससे हम लॉस से बच जाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए इसे नोट करिए, अभी आगे कराते हैं। चलिए कम बैक। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। क्लियर ना। चलिए, तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है। यदि आप एग्जाम्पल की बात करें फिफ्थ प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पर हम दो डायग्राम्स बनाने की कोशिश करेंगे। सपोज कर लीजिए आपके पास एक ये कंडक्टिंग शेप का एक रेक्टेंगल है या स्क्वायर कह दीजिए। तो आपसे क्या पूछा जाता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो कंपेरिजन करके देखिए, और चार्ज है ये कम्प्लीटली आपका ऐसे चार्ज किया गया है। तो बताइए what is the relation between E1 and E2, where E2 is the electric field at this corner and the E1 is the electric field at this point. Then so since the radius of curvature at that point is very smaller in the comparison of this point, so E1 will be R1 is smaller than R2, so implies that E1 will be greater than E2. Okay, and for we take another example. Suppose any shape of like that, any point is E1 is here and E2 is here, and this is a charged conductor. Then this point have radius of curvature smaller than R1, then E1 will be sharper than, larger than E2, since R2 is sharper than R1. Okay, and if it is uniform, if it is a regular spherical conductor, then and it is charged, then if we find out electric field these at these point to these 2 points, since R1 is equal to R2 at all points, then E1 will also equal to E2. Okay, that is the electric field at each point of the uniform spherical conductor is same. Okay, so now next point is very important according to the as the point of view of the examinations and competitions. So next point is fifth point, sixth. Okay, and sixth point is electric field lines are perpendicular, और always कर दीजिए, और always
perpendicular to the surface of the conductor. Remember this point always, कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो आपके कंडक्टर से पास नहीं होंगी। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज आपकी कंडक्टर की सरफेस पर परपेंडिकुलर होगी, नॉर्मल होगी, और वे कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये है ना। एंड नाउ चलिए, फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज एनी सरफेस लाइक दैट, then electric positive charge, take positive charge, then the electric field lines like that always will be perpendicular to the surface. Okay. For sphere, okay. If any conductor is uncharged but placed in a uniform electric field, suppose this is spherical conductor and this is external electric field. When we put this spherical conductor in this electric field, then the behavior of the electric field lines for this conductor will be like that. And you know very well, electric field lines do not cannot pass from the conductor and always perpendicular to the surface of the conductor. Using these two properties, we can draw the behavior of electric field lines. Like that. Okay, there is no electric field line inside the conductor and each electric field line is perpendicular to the surface of the conductor. It is the most important property of a conductor related to the electric field lines. Okay, and now here we also discuss another important property which is known as dielectric strength, which will be defined in the next chapter in deeply, but here we discuss a property related to this. Here we consider a conductor
if you give the charge of this conductor then the amount of charge increase to the surface of the conductor। जैसे आप इस कंडक्टर को चार्ज देंगे तो कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, चार्ज इंक्रीज होगा तो उसके कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना लार्ज हो जाएगा कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके चारों ओर के जो एनवायरनमेंट उसका जो मटेरियल है, जैसे एयर की बात करें हम, तो उस एयर के जो में प्रेजेंस जो पार्टिकल्स है उन्हें वो क्या कर देता है, आयनाइज्ड कर देता है, तो जिसके कारण उसका बिहेवियर एज ए कंडक्टर हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपका चार्ज जो है वो आपकी एयर में क्या हो जाता है, लीक हो जाता है। तो वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ इस मटेरियल की जो इसके चारों ओर का है, जो इसके मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सके, सहन कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल। तो वो भी डिस्कस करेंगे, इस पॉइंट को आप यहीं पर रोक दीजिएगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को। और यहाँ पर हम एक क्वेश्चन बनाकर छोड़ेंगे जिसे हम लास्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, उसमें जब आपकी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पर, तो आपको याद दिलाना होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू of maximum charge that can be given to a spherical conductor of radius are placed in air। ओके, तो ये हमें डिस्कस करना है। इसमें कुछ डाटा आपको दे देते हैं। जो आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है किसकी, एयर की, वो आपका होता है ई मैक्सिमम, जिसे बोल रहे हैं हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। वो आपकी होती है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ओके, इसे याद रखिएगा। तो आर यहां पर आप ले लीजिए 1 मीटर। देन क्यू मैक्सिमम आपको फाइंड आउट करना है, और क्यू मैक्सिमम के लिए आपको रिलेशन पता है। स्फेरिकल कंडक्टर के लिए आपको लिख देते हैं कि E इक्वल्स टू होता है आपका 1/4πε0 Q/r²। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्यू मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। करके देखिएगा कि किसी स्फेरिकल कंडक्टर को जिसकी रेडियस 1 है हम कितना चार्ज दे सकते हैं जिससे कि उसका चार्ज बाहर की एयर में लीक ना हो। ठीक है, तो इसे ट्राई कीजिएगा। एक प्रॉपर्टी और भी है आपके इससे रिलेटेड, जिसमें आपने देखा कि यहाँ पर आपने एक सरफेस ड्रॉ की है, तो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपकी निकलती है। तो कंडक्टर की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने चार्ज को ऑलवेज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है कि उसकी ओवरऑल सरफेस पर आपका पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल सरफेस पर अभी आप देखेंगे तो हमेशा वो पोटेंशियल को ऐसे एडजस्ट, चार्ज को ऐसे एडजस्ट करेगा कि उसका जो पोटेंशियल है वो हर पॉइंट पर आपका क्या हो, फिक्स हो, सेम हो। तो ये भी प्रॉपर्टी बन सकती है। ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हम। 8 द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर is always equipotential and equipotential
surface. Equipotential surface, that means potential at each point of any charge conductor always is same. Okay, thank you for watching this video. Please subscribe my YouTube channel and share in your friends. Okay, thank you.